आला ज़फ़्र होते हैं हमेशा झुक के मिला करते हैं कि सुराही सिर नबू होकर भरा करती है फरमान। एक as a doctor I can tell you this act has done nothing to the patient but has been a deterrent for the doctors. We survived on doctor-patient relationship. हमारा रिश्ता पेशेंट के साथ भक्त और भगवान का रिश्ता था। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर प्रोफेशन में कमी आई है, बट एट द सेम टाइम आई टेल यू कि पहले कभी पेशेंट आता था तो हम उसे और भावना से देखते थे। आज पेशेंट मेरे रूम में एंटर करता है, you the patient, it is of your concern, you are a budding doctor. What I am trying to tell you is going to help you in your life. Now if the patient enters, we look upon the patient as a potent petitioner. Now who is going to suffer? In any case, doctor is not going to suffer. It is the patient who is going to suffer. I can tell you my own example. Earlier on, when patient used to come, even if the eye was a gone eye, I used to tell the patient कि रोशनी आ गई तो तेरी नहीं तो मेरी. And now I don't have the guts to tell the patient, because patient tomorrow, despite he will not go to the consumer forum and tell the judge कि सर मेरी आंख तो पहले से गई बीती थी, डॉक्टर ने कोशिश तो की। ऐसा नहीं है। खराब आंख को लेकर he will file a case, he will file a suit against the doctor and ask for compensation. So in any case, any society having such consumer forums, having such laws, it is like walking on the edge of the sword. There is a very thin line which separates the negligence and the complications. You see, it could be a negligent act on my part, it could be a normal complication. Who is going to differentiate this? As Mr. Gakkad was putting across, that who is going to be liable for this? Now question is that any surgery in medical profession has lot many complications, and all the complications are mentioned in the books. Now same complications could be negligent acts also. There is nobody in the consumer forums to differentiate between a negligent act and a normal complication. And unless and until people with expertise are put into forums, there cannot be any use of these forums. The way the heads of the consumer forums are appointed, it's a big question mark. Who is appointed head of the consumer forum? A party worker. The law says it should be a district judge or a person of the status of the district judge. But tell me a forum where a person with such an experience is appointed. The persons who are appointed themselves take the applications against the doctors, against the companies, and then try to harass the people. So the acts in India are made sometimes for the benefit, but most of the times for harassment. And let me tell you two acts in India. One right to information and one right of consumer. Both have tried to destroy the social fabric in the society. They are the acts who have not done anything good but bad to the society. So we have to go back to the history. हमें अपने पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा कि भारत कैसी भूमि थी। भारत त्याग की भूमि थी, भारत बलिदान की भूमि थी, भारत शूरवीरों की भूमि थी, भारत न्यायप्रिय राजाओं की भूमि थी।
यहां पर राजा रंजीत सिंह जैसे लोग हुए जिनको अगर किसी का पत्थर लगाकर आंख चली गई, राजा रंजीत सिंह के सामने उन बच्चों को लाया गया जिनका पत्थर लगने से उनकी आंख खराब हुई, कहा कि इनको सजा दे दी जाए। तो राजा रंजीत सिंह ने पूछा कि ये बच्चे क्या कर रहे थे, तो बताया गया कि ये बच्चे पेड़ पर फल तोड़ने की इच्छा से पत्थर मार रहे थे पेड़ पर। तो राजा रंजीत सिंह ने कहा कि यदि पेड़ पर ये बच्चे पत्थर मारे तो वो उन्हें मीठे मीठे फल दे, और राजा रंजीत सिंह पर पत्थर मारे तो राजा रंजीत सिंह उन्हें सजा दे, ऐसा हो नहीं सकता। यह हमारे देश के राजाओं का न्याय है। हमारा देश त्याग की भूमि, यहां महात्मा बुद्ध ने अपना पूरा जीवन इस पूरे देश की मुक्ति कैसे हो उसके लिए बिता दी। विवेकानंद को उनके गुरु ने कहा कि आओ तुम्हें 2 मिनट में मुक्ति दिलाता हूं। विवेकानंद ने कहा कि क्या इस मुक्ति से मेरे करोड़ों भारतीयों की मुक्ति हो सकती है? क्या मेरी मुक्ति से इन करोड़ों भारतीयों का पेट भर सकता है? तो परमहंस ने कहा नहीं, इससे तो केवल तेरी अकेले की मुक्ति होगी। तो विवेकानंद ने कहा कि मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जिससे केवल मेरी मुक्ति हो, मुझे वह मुक्ति चाहिए जिससे मेरे करोड़ों भारतीयों का पेट भरे, करोड़ों भारतीयों की मुक्ति हो। यह देश उन देशवासियों का, इस देश में राजा विक्रमादित्य जैसे राजा हुए जिन्होंने अपनी न्यायप्रियता के लिए पूरे के पूरे विश्व में अपना झंडा फहराया, भारत की न्यायप्रियता। यह देश बलिदानों की भूमि है। इस देश पर गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग हुए जिन्होंने अपने पिता के साथ अपने चारों बेटे इस देश की मुक्ति के लिए वार। सो क्या ऐसा देश जिसकी सभ्यता इतनी पुरानी हो, जिसकी सभ्यता मानवता के रिश्ते पर टिकी हो, जिस सभ्यता में वसुदेव कुटुंबकम कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, ऐसी संस्कृति पनपी हो, उस देश में आज हम ऐसे कायदे कानूनों की बातें करें जिन कायदे कानूनों का कोई मकसद ही नहीं है। क्योंकि नुकसान कहां हुआ, क्यों हमें जरूरत पड़ी इन सब कायदे कानूनों? क्योंकि इस देश ने आत्मावान लोग पैदा करने बंद कर दिए। इस देश ने अनाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी लोग पैदा करने शुरू कर दिए। इसलिए इन कानूनों की आवश्यकता पड़ी। हमें पुनः वापस जाना पड़ेगा विवेकानंद के शब्दों पर, जिसने कहा कि इस देश को कोई शिक्षा पद्धति नहीं चाहिए, इस देश को ऐसी पद्धति चाहिए जो इस देश की आत्मा को जगा सके, इस देश के लोगों की आत्मा को जगा सके, जागृत कर सके। इस देश को गुरु गोविंद सिंह के शब्दों पर जाना पड़ेगा, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और कहा कि मुझे खालिस व्यक्तियों की आवश्यकता है। खालिस यानी आत्मा। तो मुझे यदि ये बताओ कि इस देश में लोग आत्मावान हो, लोग खालिस हो, ना बनाने वाला चोरी करे। जब बनाने वाला चोरी नहीं करेगा तो भुगतने वाला चोरी कैसे करे? ये चीजें तभी आई जब हमने दूसरों की संस्कृति को अपनाना शुरू किया, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना शुरू किया। हमारे देश का व्यापार तो बड़ा सिंपल था। हमारे देश में व्यापार कभी पैसे से था ही नहीं। वी हैड द बार्टर सिस्टम विद अस। हमारे यहां पर बार्टर पद्धति थी कि मेरे यहां गेहूं हुई, मैं गक्कड़ साहब के यहां गया, इनके यहां दाल होती है, अपनी गेहूं दे आया, इनसे दाल ले आया। ये कपड़ा बेचते हैं तो मैं अपनी गेहूं दे आया, इनसे कपड़ा ले आया। ये हमारे देश का व्यापारिक सिस्टम। उस देश में कहां कंज्यूमर था बताओ मेरे को? इसलिए कोई कंज्यूमर कानून की आवश्यकता नहीं। जब से हमने अपने देश की पद्धति को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, अपने समाज को छोड़ा, अपने गांव को छोड़ा और ऐसी शिक्षा पद्धति को अपनाया जिस शिक्षा पद्धति ने केवल हमें चालाकी दी, केवल हमें चोरी करना सिखाया, केवल झूठी डिग्रियां देना सिखाया,
मुझे याद है कांगो में आज भी एक ऐसी जाति है, ऐसी आप कह सकते हैं आदिवासी जाति है, जिनको केवल 3 ही चीजें आती है और उनकी गणना 3 पर समाप्त हो जाती है. दे नो 1, 2 and many. They do not know even 3. And history records it, research records it, that till date in that society there has not been any incidence of loot, dacoity or rape or anything else. That means a society which is a primitive society, a society which is without education, is still doing better as far as values are concerned. But we are a society which is an educated society, but education is without values, without morals, without ethics and without religion. And no education system can survive if it has no values. If we have doctors in this country जिनकी आत्मा जागी, जो गलत काम करें ही नहीं, जो सेवा भाव से मरीज की सेवा करें,